शंकर जी कहाँ बोले? हाँ आइए। हम बोल रहे हैं I would like to request you all. Request you all kindly take your seats. Paswanji, Member of Parliament, Jammu Bihar, National President, Lok Jan Shakti Party, Ramvilas. Thank you very much, Tina ji. And thank you everyone for taking time. I know it's a Ramadan time, and many of you are fasting, and many of our brothers and sisters are fasting. Despite you have found a time to come here, and I would like to know to invite the most dynamic personality in Indian politics. You know, when it comes to the age of 30s, 40s, and I can see that this personality has all the traits of Sri Narendra Modi ji when it comes to the energy level, and he already has the legacy of the social justice that he has got from his father, late Sri Ramvilas Paswan ji. So I would like to welcome Mr. Chirag Paswan ji on the stage. Please be seated. And I would also like to invite Sri Uma Shankar ji to come on the stage. Uma Shankar ji is a BJP politician from Bihar, and he was my junior in JNU, and he was a student leader. We will start the program in this country. We start with the national anthem of UAE and with Bharat, and after that we will do the light clamping ceremony. So if we can play. Then the Indian anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत आज के चीफ गेस्ट माननीय श्री चिराग पासवान जी को, गेस्ट ऑफ उमा शंकर जी को, और हमारे आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर स्पीकर श्री रविकांत जी को, रविचंद जी को, कि वो आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
ऐसी श्री संजय मेहता जी, प्रकाश जी, आइए। It's a great pleasure for me that we are doing the third Ambedkar Global Jayanti, celebrating it in Dubai. The inspiration that I got when I was studying in JNU. So I was also a student leader, and actually I was a leader for Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. So some of my friends who were intellectuals or whatever you call them, they were thinking that we are Manuvadi, and then I learned about Dr. Ambedkar and I read. And actually I found out that there is no great leader than Dr. Ambedkar, which is a leader not only for the Dalits, because when I was in school, I learned that Dr. Ambedkar is a leader for the Dalits. And Dalit is a community, the downtrodden community in India. And actually, I did not learn like he is, the world leader or the Indian leader. So when I went to study in Australia, there also I asked my Australian friends that any Indian leaders, and all they will talk about Mahatma Gandhi, which obviously is one of the greatest leaders that our country has given. But from 1 to 10, it was all Dr. Mahatma Gandhi. Some people might know Indira Gandhi, but the rest of the politicians nobody knows about. And since those who are in Delhi, you will know that near JNU there is a Vasant Vihar area, and we used to go there every day, and we see Dr. Nelson Mandela Path, so which is next to JNU, which I will go every day. And then I thought when I went to Australia that there is no street in the name of Dr. Ambedkar. And the same thing in Dubai and in the other places of the world. So we started with the mission of first taking the thoughts of Dr. Ambedkar outside India for the people, the children of the Indian NRIs, so that they know about the great leader, and then also to talk to the other community, the foreigners, about Dr. Ambedkar. Because he was not just a leader, he was a social scientist, he was a political scientist, he was an economist, and at the same time he had studied law, and he was a father of Indian Constitution. I read that there were some thoughts for the Constitution that those who are a graduate should be given more weightage in the votings. So it was Dr. Ambedkar whose idea was to make each vote equal, whether they are graduates or non-graduates. And in those times it was a big matter, because we would have seen a different India if we have different voting rights and weightage for the votes. So that was one inspiration. In Dubai and in many of the Gulf countries, there are so many expat laborers. So our organization worked for that. There are 35 lakhs Indian here, and 30 lakhs of them are actually laborers. So the organization was aimed to work for them, to make them aware of their rights. And that's the reason when there was a COVID, and when there were stranded laborers, you would have seen that in Mumbai, people are walking from Mumbai to Bihar or to UP. And one fine morning, I read that there was one gentleman who took a chartered flight because he wanted to do the final rites for his father in Mumbai. So he took a chartered flight from Dubai during COVID time. Then me and my colleagues, we asked how can he fly, because there is no flights. Then when we found out and dig deep, then we found out that the chartered flights are allowed. If you can have money and if you can book the chartered flights,
you can very much take the permission from the authority and you can go to India. So we organized with some other stakeholders about 29 chartered flights to Bihar. That day we were able to send around 5,000 laborers. There were other stakeholders to help Ambedkar Global, obviously, for that. During the second time also, COVID time, we adopted 6 districts in Bihar and we sent oxygen concentrators and flow meters. And that saved some instant lives. And we took a database of the people who had passed away in COVID in these 6 districts, and those who were below poverty line and those who were the bread earners if they passed away, we provided the ration for 2 months. And we attached one NRI with that family as a mentor for the next 6 months. So these are few of the initiatives. Our objective for are 4. One is to take the, of course, teachings of Baba Saheb to the world. Second is to have the street in the name of Baba Saheb after talking to various stakeholders. The third one is that we would like the curriculum of Dr. Ambedkar to be included in the foreign universities like Oxford, Cambridge and all. And for that, we are already working with the Ambedkar International Center, which was launched in, I think, 2014 when the new government came in Delhi. So that's their main KPI. So we are working with them. And the fourth is that we want the chair for Dr. Ambedkar, like we have in JNU, like we have in Allahabad University and other universities. The chair in the name of, just like we have Lakshmi Mittal, chair in Harvard. So like that in the top universities of the world. And the fifth I have already talked about, that we do the groundwork in terms of educating and educating the youth and the laborers who are expatriates. So the first event was graced by Sri K.C. Tyagi, who is the Rajya Sabha MD. And the next one was, the chief guest was Sri Santosh Kumar Suman. Last year many of you attended in the same place. So he is a minister in Bihar. And this year was the most important year for us, because we were talking to Sri Chirag Paswan ji for a long time, and he agreed that he will find time to come here. And just like we said that we don't want Ambedkar just to be a leader for Dalits. And the good thing is that Mr. Chirag Paswan ji is a leader for everyone. Whoever I talked, they said that they want our next leadership in Bihar and even in India to be under the So I would like to welcome you again, and I would also like to hand over. We also have some guests from India who are leaders, so they are not as popular as Mr. Chirag Paswan, but they are inspired by him, and they are under the guidance of Mr. Chirag Paswan. So we will just name Shri Sanjay Paswan ji, Dhyan Mahasati Bihar Lok Janshakti Party, रविंद्र कुमार सिंह जी, प्रदेश संगठन मंत्री बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास stadium. So those who are in cricket, you can come with
श्री अशरफ अंसारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। विजय कोठा जी, who is heading Bhojpuriya Samaj in Dubai. श्री राकेश कुमार सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। श्री सौरभ पांडे जी, प्रदेश महासचिव बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। Now, before we start, what we are waiting for, to hear what is the inspiration of Mr. Chirag Paswan ji for the nation and for the youth and for Bihar. Before that, I would just like to run a small video for 2 minutes. Thank you. Thank you. And we have also 1-minute video of a message from another Indian leader, Mr. Guru Prakash. बाबा साहेब आंबेडकर महान व्यक्तित्व थे, एक बहुआयामी व्यक्तित्व उनका, बट आज बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि वो सिर्फ वंचितों के नेता अपने तरीके से मैं आज भी अपने हृदय में अमर पाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री उमाशंकर अम्बेडकर ग्लोबल की जब नींव धरी गई थी तभी से आप हमारे साथ हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। तो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है यहाँ पे अगर 95% कहें तो वो इंडियंस का है और उसमें भी बिहार से लोग ज़्यादा है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के एक तो 135वें जन्म जयंती समारोह को कटल नहीं करूँगा। तो नई गवर्नमेंट जब आई इंडिया में, ऑब्वियसली आप लोगों के सपोर्ट से ही आई, पब्लिक ने वोट किया, वोट के बाद ही 2014 में एक नई गवर्नमेंट आई है। वो समाज के निम्न जो वर्ग है, जो क्लासिफिकेशन हमारा, हालांकि इंडिविजुअल जो थॉट है, मैं मानता हूँ कि वो बाय बर्थ नहीं है, वो दैट इज बाय प्रोफेशन। हो सकता है कोई किसी भी कास्ट में, किसी भी रिलीजन में बर्थ हुआ हो, लेकिन वो ऐसा काम करता है तो उसको हम लोग पूछते हैं। तो मैं हो सकता है कि आप लोगों से डिफर, बट आई बिलीव कि वो किसी भी इंडिविजुअल का आइडेंटिटी है वो बाय बर्थ नहीं होता है। किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी में उसका जन्म हो सकता है और देश और समाज के लिए अच्छा काम करते हैं तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जैसा कि हमारे जो अभी यहाँ पे चेयर कर रही हैं मैडम, उन्होंने बताया कि उनके आइडियाज क्या थे कि समाज का, रविशंकर चंद्र जी भी सेम कम्युनिटी से, इसलिए ये लेके चल रहे हैं। तो मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाय कास्ट इज ए ब्राह्मण, but my ideas is totally different. He wants कि अम्बेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो फॉरम को उसको मालूम होना चाहिए। कहीं भी इंडियंस जब हम लोग बाहर जाते हैं तो पूछते हैं, जैसा उन्होंने बताया कि केवल महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेने वाले, तो उनके पैरेलल वी हैव सो मेनी लीडर्स। हमारे पास अभी नील जब गवर्नमेंट बनी 2014 में, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको लेके भी काफी हुआ कि भाई क्या प्लानिंग चल रहा है कि गुजरात में एक ऐसा स्टैचू बनाया जा रहा है। हो सकता है कि पैरेलल क्या है तो एक ही सीट, प्राइम मिनिस्टर का एक ही सीट होता है, कोई एक ही आदमी कर सकता है। तो उस समय का कुछ रीजन रहा होगा। तो इंडिया में लीडर्स के या सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कहीं जाए तो कोई लीडर के बारे में पूछे कि कौन कौन लीडर को आप जानते हैं, तो उन्हें पता है कि भाई महात्मा गांधी के समकक्ष या उनके आसपास बहुत सारे लीडर्स हैं जिसमें अनेकों नाम है। आज हम लोग बेसिकली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा फोकस यही होगा। सभी काफी पेशेंसली सुन रहे हैं और चीफ गेस्ट के बातों का, उनके भाषण का इंतजार हो रहा है, इसलिए मैं बाधा नहीं करना चाहूँगा। आपका बातें वास्तव में ही दिल को छू गई। आप कितने कंसर्न हैं अपने लोगों के लिए, बहुत ही खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि, जैसा कि आपने कहा युवा दिलों की धड़कन, श्री चिराग पासवान जी। हालांकि मैंने एक पेज भरा था पूरा का पूरा उनके बारे में कुछ कहने के लिए लेकिन कोई बात नहीं, हम इन्हें सुनेंगे अभी इनके बारे में कौन नहीं जानता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये सब पेज आप गूगल पे कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इनमें कुछ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि दिखती है, इनके पिताजी की छवि दिखती है, बट मेरा मानना ये है, आप सबका भी मानना होगा कि हर एक मनुष्य अपना एक पर्सनल स्पार्क लेके पैदा होता है, जो वो खुदा का दिया हुआ होता है, इनका अपना है। साथियों, सबसे पहले आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद for giving me this opportunity, for giving me this platform to come and speak about a leader जिनको मेरे नेता ने अपना नेता माना था। मैं अपने पिता आदरणीय रामदास पासवान जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना नेता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को माना था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारत में हम लोग विभिन्न जगहों पे अक्सर चर्चा करते हैं, इनकी बात करते हैं, पर भारत से बाहर निकल कर, और मुझे लगता है कि जिस सोच के साथ इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया है और जो सोच रवि जी की है,
कि अम्बेडकर साहब को सिर्फ एक क्षेत्र, एक जाति या एक देश तक ही नहीं सीमित रखा जा सकता। उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि जहां पूरे समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जिसकी चिंता या जिसके बारे में उन्होंने सोचा ना हो, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र ना किया, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया, जिसकी वजह से आज पूरा देश चल रहा है, वहां पर उनके नाम के जिक्र को मात्र एक जाति, एक समुदाय तक सीमित करके रख देना ये गलत है। और मैं भी प्रमुखता से, मुखरता से इसके बारे में बोलता आया हूँ, चर्चा करता आया हूँ। पर मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मुझे आज ऐसे साथियों का साथ मिला जो एक सामान्य, जो एक जैसी सोच हम लोग रखते हैं। और यकीनन मुझे लगता है इस सोच के साथ रवि जी हम लोग आगे बढ़ेंगे, उमाशंकर जी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जरूर जो लक्ष्य है हम लोग का, हम लोग जरूर उसको प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को रखूँ, मैं पुनः फाउंडर ऑफ अम्बेडकर ग्लोबल कम्युनिटी लीडर रवि जी का, उनका दिल से मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं मेरे साथी उमाशंकर जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये तालमेल बैठाया और सुनिश्चित किया कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो सके। मेरे साथ बिहार से, भारत से चलकर आए मेरे तमाम साथी संजय पासवान जी, जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। मैं यहाँ पर रविंद्र कुमार सिंह जी, जो कि हमारे प्रदेश के संगठन के हमारे मंत्री हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अशरफ अंसारी जी, जो हमारे प्रदेश के, बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनका मैं स्वागत करता हूँ। राकेश कुमार सिंह जी, गबरू जी हम लोग उनको बुलाते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बिहार के। साथ ही में सौरभ पांडे जी, जो कि प्रदेश के महासचिव हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और पुनः इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, अम्बेडकर ग्लोबल कम्युनिटी लीडर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तमाम साथियों का, आप सबके परिवार के सदस्यों का, क्योंकि मुझे पता है रवि जी के माता पिता, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी और इस परिवार के कई और सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका धन्यवाद करूँगा। टीना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आए हो, मैं आपका नाम लिख दे रहा हूँ, राइट, आपका भी धन्यवाद करूँगा। आपने भी बहुत खूबसूरती से मंच का आप संचालन कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले ये संवाद है और ना मेरी उम्र इतनी है, मेरी उम्र की चर्चा कई बार हुई है इस दौरान। कईयों ने मुझे 30s 40s का बोला, कईयों ने बोला कि पता नहीं बड़े हैं कि छोटे, बट मेरा 40 साल मेरी उम्र है। उम्र मुझे नहीं लगता इस तरीके से पहुंच गए जहाँ पे मैं आप सबको कोई ध्यान दूँ। आप में से अधिकांश उम्र में, तजुर्बे में मुझसे बड़े हैं। मैं सिर्फ एक संवाद करने आया हूँ। एक युवा राजनीतिज्ञ होने के नाते मेरी क्या सोच है, संभवतः कई आप में से डिफर करेंगे उस सोच के साथ। आपके मार्गदर्शन की भी मैं अपेक्षा रखूंगा, आपके सुझावों की भी मैं अपेक्षा रखूंगा। पर यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि भाषण देने में नहीं आया, एक संवाद करने आया। आपको कभी लगे कि आपको मुझे इंटरप्ट करके कोई सवाल जानना है, कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिफाई करना है, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। आज जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती दिवस समारोह के उपलक्ष्य में, ये कार्यक्रमों पे हम लोग जरूर बाबा साहेब को हम लोग याद करते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं उनके विचारों को हम लोगों ने सीमित करके रख दिया है सिर्फ जयंती, पुण्यतिथि तक। क्या हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उनके दिखाए आदर्शों पर, उनके दिखाए मार्गदर्शन पर क्या हम लोग चल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग चल रहे होते तो आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग समाज में उन कुरीतियों को हम लोग नहीं देखते, या समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कि आज भी कायम। अगर हम लोगों ने सही मायनों में उनके विचारों को अपनाया होता तो शायद आज हम लोग कहीं और होते। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, मुझे लगता है ये मैं पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि किसने सही किया, किसने गलत किया। पर जिसने गलत किया उसका साथ देकर भी क्या हम लोगों ने सही किया? क्या उन लोगों को साल दर साल मौका देते रहना, ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को, मानिए ना मानिए, बट भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है भारत में। वहां पे सरकारें ही नीतियां बनाती हैं और वो सरकारें ही जिम्मेदार होती हैं कि उन 5 सालों में हमारे देश में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। और हम
लोग बिहारी हैं तो मैं अपने प्रदेश की भी बात करूंगा। हम लोगों ने अपने प्रदेश में भी कई ऐसे राजनीतिक दलों को साल दर साल मौका देते गए। क्यों? क्योंकि वो नेता हमारी जाति का है। उसने क्या किया हमारे लिए, क्या नहीं किया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी जाति का है, इसीलिए हम उसको वोट कर रहे हैं। इसी के खिलाफ तो बाबा साहब लड़ते रहे। इस जातीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या सही मायनों में हम लोग उनके विचारों पर आगे चले, क्योंकि आज भी आप हिंदुस्तान में आप चले जाइए और खासतौर पर बिहार में आप जाइए, आज भी वही जातीय व्यवस्था है। बाबा साहब ने जब संविधान का जब निर्माण किया, जब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करते हैं, और उसमें शेड्यूल कास्ट की बात की गई, वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई। क्या है शेड्यूल कास्ट? अनुसूचित जाति की जब हम लोग बात करते हैं, ये समाज के सिर्फ वंचित शोषित वर्ग के लोग नहीं थे। अनुसूचित जाति में उन जातियों को शेड्यूल किया गया, उन जातियों को लिस्ट किया गया जो कि कहीं ना कहीं छुआछूत की शिकार रही है, जिनको अछूत माना जाता था, जिनको गांव से बाहर रखा जाता था। और भाई मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को वाकिफ होंगे, जितने बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को देखा होगा। धीरे धीरे ये चीजें कम हुई, पर अभी भी है। पर एक समय ऐसा था जहाँ पे अनुसूचित जाति से, जिनको अछूत कहा जाता है, उनको देखना तक पाप था। उनके गले में घंटी बांधी जाती थी, कमर पे झाड़ू बांधा जाता था। घंटी क्यों? ताकि वो चले तो घंटी बजे और गांव के लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दें। झाड़ू इसीलिए क्योंकि जिस रास्ते से वो चले तो वो खुद झाड़ू से अपने पांव के निशानों को मिटाते चले, ताकि कोई दूसरा उसको छू ले तो वो अपवित्र ना हो जाए। ऐसी जाति जिनको अछूत माना गया, गांव से बाहर रखा गया, उनको बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट बोलकर उनको लिस्ट किया गया। और इस सोच के साथ लिस्ट किया गया कि आज तो मैं इनको लिस्ट कर रहा हूं, पर एक दिन ऐसा आएगा जब ये भेदभाव की तमाम जंजीरें टूटेंगी, वो दीवारें टूटेंगी। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें, उसमें आधार उनकी अलग संस्कृति, उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाल, उनके अलग तौर तरीके रहने के, जंगलों में रहना, अलग तरीके से उनका पहनना, होना, बोलना, चलना। ट्राइबल कम्युनिटीज जिनको हम लोग बोलते हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब्स में उनको लिस्ट किया गया। पर सोच यही थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये तमाम बंदिशें टूटेंगी। पर आज भी आजादी के 75 साल के बाद जब देश हमारा अमृत महोत्सव मना रहा है, और खासतौर पर मैं पुनः बिहार की बात करूंगा, क्योंकि ये चीजें सबसे ज्यादा यूपी बिहार में ही अनुभव हम लोग करते हैं। जब एक बिहारी को बिहार से बाहर निकलता हुआ देखता हूँ तो वो फिर वो से बिहारी हो जाता है। फिर वो अपर कास्ट का बिहारी नहीं होता, फिर वो दलित बिहारी नहीं होता, फिर वो पिछड़ा बिहारी नहीं होता, फिर वो बिहारी। पर अफसोस इस बात का है कि वही बिहारी जब तक बिहार में रहता है, वो दलित होगा, वो ब्राह्मण होगा, वो भूमियार होगा, वो राजपूत होगा, वो मुसलमान होगा, वो पिछड़ा होगा, वो अति पिछड़ा होगा, पर वो बिहारी नहीं होगा। उसको सिर्फ जाति से देखा जाएगा, उसको सिर्फ धर्म से देखा जाएगा। और यही व्यवस्था कारण है कि आजादी के 75 साल के बाद भी मेरा प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश बना। यही कारण है। और यही कारण है कि हम सब इतनी भारी संख्या में भैया यहाँ पर हैं। कौन छोड़ना चाहता है अपने घर परिवार को? I come from an extremely close-knitted family. मेरे पिता जब तक थे, no matter how busy he was, he made sure that one meal a day हम लोग सब साथ में बैठ के खाएं। और वो one meal a day, वो वाला मील नहीं कि भाई बैठे हैं तो हम अपने मोबाइल में लगे हैं तो वो अपने आईपैड में लगे हैं, नहीं। साथ बैठकर बातचीत करना, तुम बताओ स्कूल में क्या रहा, तुम बताओ कॉलेज में मेरी सिस्टर से पूछते थे क्या, हम पूछते थे पापा से कि पापा आप बताइए क्या किया, उनसे सीखते थे, उनकी कहानियां जानते थे। ये सही में एक पारिवारिक चर्चाएं हम लोग करते थे। ऐसे में कोई मुझे बोले कि भाई अपना परिवार छोड़ के तुम दूसरे प्रदेश या दूसरे देश चले जाओ, मैं मरना पसंद करूंगा, मैं जाना नहीं पसंद करूंगा। पर आज मैं देखता हूं क्योंकि परिस्थितियां मजबूर करती हैं। और आज की तारीख में आप सब बिहार से अभी भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथी यहाँ पर पापा अभी गाड़ी में वो बोल रहे थे, मेरे निजी सचिव मेरे साथी अभी गाड़ी में उमा जी को बोल रहे थे कि आप लोग तो ज्यादा भोजपुरी मैथिली में आप लोग बतियाते हैं, इतना तो हम लोग अब वहाँ पर नहीं बतिया रहे, क्योंकि उस संस्कारों को आप लोग यहाँ पर लेकर आए हैं जो अभी भी आपको जोड़ के रखता है अपनी मिट्टी, अपने गांव से। पर दिल से मुझे लगता है आई कैन से दिस ऑन बिहाफ ऑफ एनी वन ऑफ यू हु प्रेजेंट हियर, खुश नहीं होता है कोई अपने घर परिवार को छोड़कर।
मजबूरी में जाना पड़ता है। और ये परिस्थितियां किसने बनाई और ये परिस्थितियां क्यों बनी, इस पे चर्चा हम लोगों को करनी जरूरी है। जब तक हम लोग विल नॉट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, अरे बाबा साहब ने इतनी अच्छी बातें कही, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने वो कहा, कहेंगे, फिर घर जाएंगे, भूल जाएंगे, सो जाएंगे। पर जब तक उसको हम लोग एड्रेस करके, एक्नॉलेज करके, उसके सॉल्यूशंस पे काम नहीं करेंगे, हम लोग अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आई हैव सीन माय फादर, मैंने अपने पिता को 50 साल से ज्यादा वो सक्रिय राजनीति में रहे, ऑलमोस्ट ओवर 5 डेकेड्स वो प्रयास करते रहे, हमारी पिछली पीढ़ी ने प्रयास किया, पर क्या हासिल हुआ है और कितनी और पीढ़ियां यही प्रयास करती रहेंगी। भाई आज की तारीख में बिहार की मैं आपको परिस्थिति बताता हूँ, बिहार में कोई ऐसा सक्षम परिवार नहीं है जो अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजता हो। अब उसके बाद की परिस्थिति देखिए, जैसे ही आप थोड़े से सक्षम हुए, थोड़ा पैसा कमा लिया आपने, सबसे पहले हम अपने बेटा और बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजेंगे। वो दूसरे प्रदेश जाएगा या दूसरे देश जाएगा, वहीं जाकर वो शिक्षा हासिल करेगा, तालीम हासिल करेगा, वहीं पर वो नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, वहीं पर वो घर खरीदेगा, वहीं पर वो शादी करेगा, वहीं पर वो बच्चे पैदा करेगा और फिर उसी प्रदेश या उसी देश का होकर रह जाएगा और अपने प्रदेश में वो व्यक्ति प्रवासी कहलाएगा। अपने ही प्रदेश में उसको प्रवासी बनाया जाता है, उसको फॉरेनर माना जाता है, जबकि शुद्ध बिहारी है भैया वो बच्चा, वहीं पे पला है, वहीं पे उसका जन्म हुआ है। ये परिस्थिति हमारे प्रदेश बन के रह गई है। इन परिस्थितियों को बदलने का एक ओनरशिप जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, क्योंकि हम लोग अपने प्रदेश को इस तरीके से मिटता हुआ नहीं देख सकते। भाई वो दिन दूर नहीं है, जो आज हमारा एसेट है वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगा। आज हम लोग बोलते हैं भैया युवा प्रदेश, 70% आबादी हमारे प्रदेश की ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। वो दिन दूर नहीं जब युवा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा, सिर्फ बुजुर्ग ही रह जाएंगे। और चिंता की बात ये कि भाई कितनी बार तो सही समय पर अपने माता पिता की तबीयत खराब होने पर बच्चे पहुंच भी नहीं पाते। वो और कनेक्टिविटी का इशू है ही भाई हमारे प्रदेश में। उमा जी, रवि जी ने इस बात को प्रमुखता से उठाया, वो पहुंच भी नहीं पाते। मैं जितनी बार मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं फ्लाइट में होता हूँ, उतनी बार मुझे यंगस्टर्स मिलते हैं, वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, बोलते हैं कि भैया इतना तो हम दूसरे प्रदेशों में कमाते नहीं है जितना आने जाने में खर्च हो जाता है। भाई हम छठ पे जाएंगे, होली पे जाएंगे, दिवाली पे जाएंगे, बहन की शादी है, माता पिता बीमार हो गए, आने जाने में जितना हमारा खर्चा हो जाता है इतना तो हम कमाते नहीं है। यही अगर हम लोग उसी प्रदेश में रहकर अगर हम लोग कमाते तो 4 पैसा हम लोग अपनी जेब में भी बचाते और 2 पैसा हम लोग समाज में अपने प्रदेश के विकास के लिए हम लोग योगदान देते, पर वो परिस्थिति ही नहीं बनी। मैं बार बार इस लाइन को कहता हूँ और ये लाइन मुझे बहुत विचलित करती है। आज की तारीख में बिहारी बताइए ना भाई कहाँ पे कमजोर पड़ता है, कहाँ कमजोर है हम लोग पूरी तरीके से सक्षम हैं, सामर्थ्य है हम लोगों में। आप भारत में ही नहीं, आप इंटरनेशनली देख लीजिए, बड़े से बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स में आपको बिहारी बैठे हुए मिल जाएंगे। इंडिया में बड़े से बड़े बिजनेस हाउसेस के हेड आपको बिहारी मिल जाएंगे, मीडिया हाउसेस के हेड आपको बिहारी मिल जाएंगे, HODs इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स आपको बिहारी मिल जाएंगे। तो जब बिहारी इतने आगे हैं तो हमारा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? और आज की तारीख में भी जब बिहार के हम लोग बात करते हैं तो किन चीजों की बात होती है कि जाति के नाम पर ये कर दिया गया, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो गए। 10 दिन पहले दंगे चल रहे थे मेरे मुख्यमंत्री के गृह जिले में, दंगे चल रहे थे। बिहार सुर्खियां क्यों बनेगा? गोली से इसको मार दिया गया, इसका अपहरण कर दिया गया, पुल हवा में टूट गया, बांध चूहे उतर गए। ये सुर्खियां बनती है हमारे प्रदेश में। और ऐसे में सोचे जब हम लोग दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, इसीलिए बिहारियों की छवि ऐसी बन गई। भाई मुझे नहीं पता आपको इस बात का अनुभव होता है कि नहीं होता, पर बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। आप भारत के दूसरे प्रदेशों में जाइए, बच्चे घबराते हैं, शर्माते हैं बताने से कि हम बिहारी हैं, नहीं बताते। कॉलेजेस में वो नहीं बताएंगे कि भाई हम बिहारी हैं, शर्माते हैं वो इस बात से। जो प्रदेश मेरा मान है, मेरा अभिमान है, कैसे हम उसी प्रदेश की पहचान बनने से शर्मसार हो रहे हैं? ये परिस्थिति क्यों बनने लगी और कहां से बनने लगी? भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो इतिहास, और जैसा अभी टीना जी कोट कर रही थी कि जिसने इतिहास को नहीं पहचाना, इतिहास में कभी उसका जिक्र ही नहीं हुआ।
बाबा साहब ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है, अपने अनुभव से किया है। आप बिहार का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग तब फख्र करते थे जब देश को भूल जाइए दुनिया ने कभी शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में देश विदेश से छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे। लोकतंत्र की जननी रहा है हमारा प्रदेश। महापुरुषों का नाम गिनाते आप थक जाएंगे भाई। भगवान महावीर की जन्मस्थली रहा, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली रहा है मेरा प्रदेश, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली रहा है मेरा प्रदेश, माता सीता की जन्मस्थली रहा है मेरा प्रदेश। कौन सा धर्म, कौन सा ऐसा समुदाय है जहाँ के महापुरुषों ने उस धरती को आगे अपना आशीर्वाद नहीं दिया हो? और हमने क्या किया बदले में? उस प्रदेश का नाम इतना बदनाम कर दिया कि दूसरी जगह जाने से हम लोग घबराते हैं। We work on our accent, हम लोग अपनी बोली पे हम लोग काम करते हैं। क्यों? ताकि हमारे बोलने पे वो बिहारी लहजा रहा है। हम कहीं जाते हैं तो हम लोग एफर्ट डालते हैं कि मैं करके बोलूं, अरे मैं आया था, मैं गया था। क्योंकि अगर जैसे ही हम बोलेंगे कि अरे हम आए थे, हम गए थे, तो तुरंत है बिहारी। क्यों हम लोग शर्माते हैं? क्यों हम लोग छुपाते हैं अपनी पहचान को? बट प्राइडली सेड मैं उन बच्चों का भी कसूर नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे प्रदेश की छवि ही ऐसी बना दी गई। और इसीलिए आज जब मैं यहाँ आप लोग के सामने में आया और मैं रिपीट माई सेल्फ कि मैं कोई नेता बनकर, और मैं बिहार में भी भाई मैं कोई नेता मुझे सब नहीं समझ में आता कि क्या है नेता नहीं है। मुझे जो चीज़, और मैं कई बार मुझे भी पता मैं पॉलिटिकली करेक्ट होता नहीं हूँ ये सब चीज़ें बोलने में, बट मैं एड्रेस करता हूँ उन चीज़ों जो मुझे इश्यूज लगते हैं और उनको एड्रेस करना होगा। उदाहरण दिया गया भैया, जब प्रधानमंत्री देश में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए, उन्होंने इस बात से वो शर्माए नहीं, उनको झिझक नहीं हुई कि मैं शौचालयों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या छवि जाएगी, लोग क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग शौचालय की हम लोग बात कर रहे हैं। बट उन चीजों को एड्रेस करना होगा। एज आई सेड, वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। हम लोग छुपा के, शर्मा के, घबरा के हम लोग सोचें वो नहीं होने वाला है। और आज भी जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अगर हम लोग एक विकसित बिहार की कल्पना करते हैं तो हम लोगों को इन तमाम चीजों को सुधारना होगा। बिहार की जातीय व्यवस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है बिहार और बिहार को। बिहार में शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा अभिशाप है हम लोगों को। और शिक्षा का अभाव इसीलिए क्योंकि बिहार में बिहार की सरकारों ने कभी इस बात की चिंता ही नहीं की कि भैया किसी को पढ़ाना है, लिखाना है। क्यों? क्योंकि जातीय समीकरण बन जाते हैं ना भाई। जातीय समीकरण बन गए, पढ़ाना का वोट बैंक हमारा वोट बैंक, इसका वोट बैंक हमारा वोट बैंक, उसका वोट बैंक हमारा वोट बैंक, कागज पे तैयार हो गया कि भैया इतना प्रतिशत वोट हमको मिल गया, तो हमको क्या जरूरत है भैया काम करने की, हम क्यों काम करें? तो भाई बिहार जैसा चल रहा चलता है। आज की तारीख में भाई बिहार में जो सरकार बैठी है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जानता हूँ कि अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पर होंगे, संभवतः अलग अलग राजनीतिक दलों के भी समर्थक यहाँ पे होंगे, पर मैं सिर्फ एक बिहारी होकर मैं अपनी बातों को याद रख रहा हूँ। मैं किसी दल या किसी नेता का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर उन्होंने क्या नहीं किया और क्या कर सकते थे। आज की तारीख में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, भाई विकास की बात के लोग करते हैं। 32-33 साल से आप लोग सरकार का हिस्सा है। सरकार में जो घटक दल है, ये पिछले 32-33 साल से आगे पीछे यही लोग वहां पे सरकार में रहे। क्या बदला? क्या बदल गया इन 32-33 सालों में? भाई 2014 से पहले का भारत, कुछ लोग बोलते हैं भाई 14 से क्यों बात करते हैं, क्योंकि 14 से हम लोगों ने वो बदलाव देखे हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। भारत का गौरव, भारत का मान सम्मान बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। तो वो कंपैरेटिव स्टडी है हम लोग के पास। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है, पर जितना आप कर सकते थे उतना आपने नहीं किया, ये शिकायत है मेरी। और मेरी मौजूदा बिहार की सरकार से ये शिकायत है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे। मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री से मेरी शिकायत है भैया। संभवतः आप पढ़े लिखे वर्ग से आप आते हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, भाई मैं भी 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, पर मुझे एतराज होता है कि जब आप जातियों को मिटाने की बजाय आप जातियों को और बढ़ाने का जब आप काम करते हैं। मुझे इस बात की शिकायत है कि जब आप दलित को महादलित कर देते हैं, पिछड़ा को आप अति पिछड़ा कर देते हैं, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लव, कभी कुछ, कभी गोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष तक भी आप हमारे प्रदेश को बांट देते हैं। कब तक ये बांटने की राजनीति चलेगी? पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग बिहार अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो सिर्फ इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग, हर जाति के लोग हैं। कोई बोले कि भैया मेरी फलाना जाति में मैंने जन्म लिया तो मैं पूरी तरीके से सक्षम हूं, समर्थ हूं, नहीं।
या कोई ये बोले कि मैंने इस जाति को मैंने जन्म लिया है इसीलिए मैं उम्र भर से मेरे ऊपर प्रताड़ना ही होगी। नहीं भाई, आपको काम करना होगा, आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे। और कुछ लोग जो सिर्फ रोते रहे, भाई बाबा साहब अगर सिर्फ रोते ही रहते हैं कि मैं इस परिवार में क्यों पैदा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। अगर आपको सिर्फ रोना ही है तो फिर भाई बैठ के रोइए, कोई बात नहीं है, बट रोने को अपना हथियार मत बनाइए। मैं एक छोटा सा एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा। मैं मुझे रोने को ही अपना हथियार बनाना होता भाई। 2 साल पहले, मुझे नहीं पता कितने लोग वाकिफ हैं, बट थोड़ा सा शेयर करूंगा मेरे साथ जो कुछ हुआ। मेरे पिता के निधन के बाद मेरे परिवार के लोग ने ही मुझे अपने परिवार से मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया। मेरी पार्टी छीन ली गई, जो पार्टी मेरे पिता ने खुद बनाई थी, और जो हम नेपो किड्स जिसके लिए बदनाम है कि भैया पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग वही लेकर चलते हैं, सो वो पार्टी मुझसे छीन ली गई। मुझे मेरे ही घर से, जहाँ पे मैं पला बड़ा, within 3 hours I was thrown out of my house with my mother, with my grandmother, मेरी नानी जो बोल चल नहीं सकती, सड़क पे हम लोग का सामान उठा के फेंक दिया गया। तो मैं भी या तो 2 साल रो रो के बिता लेता, या 2 साल में अपने आप को इतना मजबूत कर लेता, इतना ताकतवर कर लेता कि आज आप लोग के बीच आकर अपने अनुभव शेयर कर पा रहा हूँ। विपदा भी आपके लिए अवसर लेकर आती है। It comes with an opportunity। हर ऐसी विपरीत परिस्थिति एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको एक अवसर माने, और या फिर आप रो रो कर कृप करके कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मैंने किसका बुरा किया, मैंने किसका बुरा चाहा, या फिर आप सिर्फ कृप करके आप उसको बिता सकते हैं। ये एक अनुभव मेरे साथ हो रहा है। I chose the right one। मैंने स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, और मैं उतरा सड़कों पे, लोगों के बीच गया। मेरे नेता, मेरे पिता के आशीर्वाद के साथ आज पुनः मैं, मेरी पार्टी उस जगह पर है जहाँ पे मेरे पिता अगर जीवित होते, जैसी कल्पना उन्होंने की थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं I must be making him feel proud and I want him to feel proud of me। आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, मेरा उत्तरदायित्व ये बनता है कि उन्होंने जिसे अपना नेता माना और जिनके विचारों को लेकर वो आगे बढ़े, मैं भी उनके विचारों को घर घर तक लेकर जाऊं। आज यहाँ पर भी आना उसी उद्देश्य का ही एक हिस्सा है, पर साथ में सिर्फ विचार बनकर ना रह जाए। बस ये भी एक आग्रह आप लोगों से मैं जरूर कर जाऊंगा, विचारों को अपनी जीवन शैली में अपनाना, रोजमर्रा के कार्यों में उनको उपयोग में लाना। और मुझे लगता है जो कि बहुत खूबसूरती से रवि जी ने इंतजार नहीं किया पेंडेमिक के दौरान कि भाई हमारी सरकारें करेंगे, इनको एक रास्ता मिला और उस रास्ते पर ये चले। एंड आई थिंक ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोग सरकारों को कोसते हैं, मैं भाई एक सिर्फ सांसद ही हूँ आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि मैं कोई केंद्र सरकार का हिस्सा हूँ या मैं कोई बिहार सरकार का हिस्सा हूँ, मैं भी सिर्फ एक सांसद हूँ। और एक सांसद होने के नाते मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जमुई के वासी लगभग जिनकी आबादी +2 मिलियन है, उनकी जीवन में अच्छा भला बुरा क्या होगा उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उन जिम्मेदारियों का निर्वाहन जहाँ पर एक तरफ मैं कर रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ मैं इसका प्रयास भी कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हम लोग उन चीज़ों को वॉइस तो कर सकते हैं। शायद आज की तारीख में मेरी वो हैसियत नहीं होगी कि मैं तुरंत कुछ कर सकूं, पर कल मैं उस हैसियत पर पहुंचूं या मैं उस हैसियत का बनूं, उसके लिए मेहनत तो मुझे आज ही से करनी होगी। अगर आज भी मैं चुप रहा, आज भी अगर मैं शांत रहा सिर्फ ये सोचकर कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है अभी करने के लिए, मैं तो सिर्फ एक सांसद हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो शायद मैं उस जगह तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ये प्रयास मैं कर रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ, जिनसे मिलता हूँ, ये प्रयास मैं कर रहा हूँ अपनी सीमाओं में रहकर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ बनाऊँ, उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ। आप सब ने कनेक्टिविटी का इशू बताया, मेरे लिए भी वही इशू है। मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी एक रात पहले तक पटना में ही था। पटना से मुझे दिल्ली क्यों आना पड़ा? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे वहाँ से फ्लाइट लेकर दुबई आना था। पटना में 14 तारीख को हम लोग भी बाबा साहेब के विभिन्न कार्यक्रम
आयोजित वहाँ पे थे, अलग अलग जिलों में आयोजित थे। मैं वैशाली में भी था, पटना में भी कार्यक्रम था, हाजीपुर भी हम लोग गए थे, कई हॉस्टल्स में उनके कार्यक्रम थे। तो पूरा दिन भाग दौड़ हम लोग कर रहे थे। क्यों? बिकॉज आज मेक श्योर कि मैं रात की फ्लाइट लेकर मैं दिल्ली पहुंचूं, ताकि अगले दिन दोपहर की फ्लाइट लेकर मैं दुबई आऊँ। पर अगर यही फ्लाइट भैया अगर पटना से अगर चलती तो मुझे चिंता नहीं होती ना, मैं आराम से वहीं पे रहता, इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। तो मैं भी आप सबके साथ एसोसिएट करता हूँ और मैंने भी लंबे समय से मैंने प्रयास किया है। पर हाँ, आज आप लोगों की इस पीड़ा को मैं शायद यहाँ पे खड़ा होकर ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आई एश्योर यू फॉर दिस कि मैं एक बार वापस जाके ना सिर्फ सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो कि मेरे अच्छे मित्रों में से एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ना सिर्फ मैं उनसे मैं आग्रह करूँगा, बल्कि मैं प्रधानमंत्री जी के भी समक्ष इस बात को होना इतना जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी में मुझे लगता है इतनी संवेदना है वो जरूर रखते हैं भारत से बाहर रह रहे भारतीयों को लेकर। और खास तौर पर जब मैं उनको बताऊंगा कि भाई बिहारी डायस्पोरा को कितनी दिक्कत है, बिकॉज हम लोग यहाँ से भारत तो पहुंच जाते हैं, उसमें उतनी कठिनाई नहीं होती, पर भारत से बिहार पहुंचना हम लोग को ज्यादा दिक्कत होती है। इस बात का अनुभव करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसको भी करूँगा। अपनी बातों को मैं समाप्त करूँ, एक दो विषय और हैं जो आप लोगों के समक्ष रखूँ। एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ बिहार को आगे लेकर जाने का। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के नाम से एक रूपरेखा विकसित बिहार की हम लोगों ने तैयार की है। मैं वहाँ पर बैठा, मैं सिर्फ इन बातों को लेकर फिर नहीं कर रहा हूँ कि अरे ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तमाम समस्याओं के समाधान की बात करता है। वो बताता है कि कैसे बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है, और जिसकी जड़ में मैं चाहूँगा कि आप सबके माध्यम से ये वर्ड स्प्रेड होना जरूरी है। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आज की तारीख में हमारे बच्चों को बरगला इसलिए दिया जाता है, बुजुर्गों को भयंका इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा के अभाव में ही लोग जातीय व्यवस्था के अंदर उलझे रहते हैं। हर वो शिक्षित व्यक्ति वो नहीं मानेगा भैया जातीय व्यवस्था को, बिकॉज ही लुक बियॉन्ड दैट। उसकी एक पिक्चर बड़ी होगी, वो बड़े टारगेट्स, बड़े एम्स की तरफ देखेगा और उसको समझ में आएगा कि भाई जातीय व्यवस्था हम लोग को सीमित करके रखी हुई है। हम लोग उस दिशा में हम लोग एक मजबूत कदम उठाने का प्रयास, जहां बिहार के हर एक प्रखंड ब्लॉक्स में ही नहीं बल्कि हर पंचायत में अच्छे विद्यालय खुले, ताकि बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन, आज की तारीख में बिहार में जाकर देख लीजिए विद्यालयों की व्यवस्था, टीचर्स नहीं है, भवन नहीं है, बेंचेस नहीं है वहां पर बैठने। ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे डिग्री के हमारे 3 साल के कोर्सेज 4-5 साल तक कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम से पहले ही वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती जिन्होंने लीक किया, और उनको फुल फ्रीडम मिलता है कि अगली बार फिर वो ऐसे ही पेपर लीक करें, और साल दर साल ये परंपरा का हिस्सा बन गया। इन तमाम चीज़ों को बदलने की वहाँ पे जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें मैं आप सबके साथ की भी मैं अपेक्षा रखूंगा। और मैंने बिहार सरकार को भी बार बार बोला है, भाई हमारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, नोएडा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, क्यों IT सेक्टर हम लोग बिहार में नहीं ला सकते? क्यों उद्योग बिहार में नहीं खुल सकते? बिहार की चीजें इतनी मशहूर हैं। हम लोग का मखाना, भाई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप सोचिए, अगर उसी मखाने की पैकेजिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग वहां पर हो जाए, वही मखाना जब हमारे बिहार से निकलता है तो 3 4 5 गुने दाम पर यहाँ पे बिकता है। पर वहीं पर उसी मखाने की कीमत हमारे किसानों को कुछ नहीं मिलती। केले इतने मशहूर हैं वहाँ पे, वही केले के चल जब डाउन साउथ चले जाते हैं तो केरला में इतने मशहूर हो जाते हैं, पर हमारे प्रदेश में वही केले बड़े बड़े सड़ते रहते हैं, किसानों को उसके उचित दाम नहीं मिल पाते। इन चीजों को प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पे बेहतर लगे, वहाँ पे उद्योग वहाँ पर आए, इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है। और एक और चीज जिसमें मैं बहुत गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मुझे आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी, टूरिज्म। अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में। जैसा मैंने जिक्र किया, एक से एक महापुरुष वहां पर है। भगवान महावीर की जन्मस्थली, भाई वैशाली को भी मानते हैं,
लछवाड़ का मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा। लछवाड़ को भी भगवान महावीर की जन्मस्थली माना जाता है, जो कि मेरी लोकसभा जमुई लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। जब मैं 2014 में पहली बार जब मैं सांसद बना था, मैं वहां पर गया, वो मंदिर इतनी जर्जर हालत में था, और तब मुझे इस बात का मुझे एहसास हुआ कि जैन समुदाय के लोग, हम सब जानते हैं देश दुनिया में हैं जैन समुदाय के लोग, जो भगवान महावीर को अपना आराध्य मानते हैं, उनके भगवान है वो, और जो कि पूर्णतः समर्थ सक्षम है। मैं आर्थिक तौर पर बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली वो लोग बहुत साउंड हैं। मैंने इंतजार नहीं किया कि मेरी बिहार सरकार कब वहां पे काम करेगी। उन लोगों से मैंने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में जाकर मैंने उनके साथ मैंने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। उनको मैंने आमंत्रित किया कि भाई आप आइए, आप ही के भगवान के लिए हम लोग चाहते हैं कि खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। और आज की तारीख में भाई आप सबको मैं अपनी लोकसभा में आमंत्रित करूंगा, प्लीज आप लोग जाएं और जाकर लछवाड़ में देखें। मुझे लगता है देश का नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर भगवान महावीर का, वहां पर वो मंदिर बना। ना सिर्फ मंदिर तो चलिए आस्था का विषय है, पर वहां पर 108 बेड का हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया, जिसको आने वाले दिनों में राज्य सरकार से बातचीत कर मेडिकल कॉलेज की हम लोग मान्यता दें। तो वहां पर ना सिर्फ डॉक्टर जाएंगे, बल्कि वहां से निकले हुए डॉक्टर्स पूरे प्रदेश में और देश में जाएंगे, जो कि आगे बच्चों का, उनके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की सेवा में वो लोग काम करेंगे। ये एक उदाहरण है जो हम लोगों ने किया। मैं कल, हमारे साथी हैं ठाकुर जी, सीतामढ़ी से हैं, उनसे कल मेरी गाड़ी में बातचीत हो रही थी, उनसे बातचीत हो रही थी। उनको मैंने कहा कि बताइए, माता सीता की जन्मस्थली है सीतामढ़ी, हम लोग अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए हम लोगों ने इतना प्रयास किया, इतना आंदोलन हम लोगों ने किया, अयोध्या में मंदिर बने और आज बन भी रहा। तो भाई अगर वहां पे इतना खूबसूरत भव्य भगवान राम का मंदिर बन सकता है, तो भगवान राम अधूरे हैं भैया माता सीता के बिना। उनके इतने भव्य मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी में क्यों हो? अब इसके दो पक्ष, आस्था तो है ही, आस्था का तो एक विषय है ही कि जो भाई माता सीता में विश्वास रखता है जाएगा वहां पे दर्शन करेगा। अब सोचिए इससे टूरिज्म कितना बढ़ेगा, उस क्षेत्र का राजस्व कितना बढ़ेगा, उस क्षेत्र का विकास कितना होगा। और अगर एक 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो भगवान राम के आशीर्वाद लेने अयोध्या जाए, वो माता सीता का दर्शन करने सीतामढ़ी भी जाए, उससे उस क्षेत्र का और उसके आसपास के जिलों का कितना विकास होने लगेगा। होटल्स बनने लगेंगे, रेस्टोरेंट्स बनने लगेंगे, रिजॉर्ट्स आने लगेंगे, वहां पर हमारे प्रदेश के राजस्व में विकास होगा। पटना सिटी चले जाइए, जो सिख समुदाय से जो लोग आते हैं, भाई ऐसी गलियां हैं, जाते जाते सिख समुदाय के लोगों की इच्छा शक्ति जवाब दे देगी। वो बोलेंगे भैया हम आग मूंद देंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हम लोग यहीं से हो जाएंगे, पर पटना साहिब जाकर भैया दर्शन करना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं इन जगहों को विकसित किया जाता है? क्यों नहीं रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर? और जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, मतलब इजी सॉल्यूशंस की बात है, क्योंकि भाई हम लोग को प्रैक्टिकल भी होने की जरूरत है। बुद्धा सर्किट के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। भाई अगर हम लोग तुरंत पटना में, अगर इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई कैसे जमीन मिलेगी एयरपोर्ट को लेकर, ये सब वो सब, भाई वहां पर तो इमिग्रेशन की फैसिलिटीज हैं, इंटरनेशनल लोग आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है देश दुनिया से वहां पे। भगवान बुद्धिज्म में जो लोग विश्वास रखते हैं, वहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे लोग चले गया तक तुम लोग पहुंच जाएंगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में, अपने अपने अलग अलग जिला जैसे होगा। इन तमाम चीजों का हम लोगों को प्रैक्टिकल होकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है। और प्रैक्टिकल होकर इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ विचारों में बाबा साहब को रख के समीकरणों पे हम लोग सरकारें बना रहे हैं, पर सही में बिहार में कौन है जो इस विजन के साथ आए? भाई आज की तारीख में मैं पूछूं कि मेरे बिहार के मुख्यमंत्री का विजन क्या है, भाई हम युवाओं को लेकर क्या विजन है, मुझे बताया ना। कैसे इंडस्ट्री आएगी? भाई मेरे तो मुख्यमंत्री पहले बोल चुके हैं, भूगोल को वो जिम्मेदार ठहराते हैं, हमारे बिहार की ज्योग्राफी को वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि यहाँ पे उद्योग नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ के भूगोल में खोट है। मैं मानता हूँ कि खोट बिहार के भूगोल में नहीं है, संभवतः मेरे मुख्यमंत्री जी की नीयत में हो सकती है, पर बिहार के भूगोल में Where there is a will, there is a way. मेरे पिता जब रेल मंत्री थे वो बोलते थे where there is a will, there is a way, where there is no will, there is a survey. आप सर्वे कराते रहिए कि यहाँ पे होगा होगा होगा, उससे सर्वे में रह जाएगा, वे तो कम से कम नहीं मिलेगा। तो ये तमाम बातें हैं जिससे हम लोग सही मायनों आने वाले दिनों में एक विकसित बिहार बनाएं। और मैं चाहता हूँ कि ये पीढ़ी तक बस ये संघर्ष अब समाप्त होते रहे। अगली पीढ़ी का हर बच्चा, मेरी अभी शादी नहीं, पर जब होगी संभवतः बच्चे हों,
मैं चाहूँगा कि वो बिहार में ही पले बढ़े, वहीं के स्कूल्स में जाए, वहीं के कॉलेजेस में जाए। और मैं चाहूँगा कि आप सब आने वाले दिनों में हम ऐसी कल्पना करें कि हम सब वापस अपने प्रदेश जाए, बिहार जाए, और बिहार में दुबई के लोग आए और वो बोले कि भैया हम लोग जाकर बिहार में हम लोग काम करना चाहते हैं, बिहार में। और क्यों नहीं भैया, सोच से ही तो होगा ना। दुबई भी तो एक सोच से ही बना। क्या था इससे पहले? जब यहाँ के शेख गए, उन्होंने देखा अरे भैया न्यूयॉर्क मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पे खड़ी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर हैं, उसी सोच से ही दुबई तैयार हुआ। तो जब दुबई तैयार हो सकता है तो ऐसा ही या इससे ज़्यादा खूबसूरत बिहार क्यों नहीं तैयार हो सकता? इस सोच के साथ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो यकीन है बाबा साहेब के सपनों को हम लोग धरातल पर उतारेंगे। टीना जी ने जहाँ उनके इतने सारे वाक्यों का जिक्र किया होता है, एक मंत्र मैं भी देना चाहूँगा। 3 मूल मंत्र की बात करते थे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। बस ये हम लोग को याद रखना है। शिक्षित होना है, अपने अधिकारों को पहचानना है, अपने हक को पहचानना है, संगठित होना है। सिर्फ बिहारी बनेंगे तभी संगठित हो पाएंगे। अगर अपर कास्ट के बिहारी बन के रह गए, दलित बिहारी बन के रह गए, पिछड़ा बिहारी, मुसलमान बिहारी, अगला बिहारी, तो उससे बड़े रह जाएंगे। संगठित होना है और फिर संघर्ष करना है। मिलकर जब हम लोग सब संघर्ष करेंगे साथ में, तो यकीनन हम लोग अपने लक्ष्य को पाएंगे। बातों को समाप्त करूं, बस सिर्फ ये वादा करके जाता हूँ, ये विश्वास दिला के जाता हूँ, आप लोग एक कदम चलिएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं 100 कदम आप लोगों के साथ की अपेक्षा रखता हूँ। अकेला चिराग पासवान भी कुछ नहीं कर सकता। आप सबके साथ की अपेक्षा रखता हूँ, आप सबके सुझावों की अपेक्षा रखता हूँ, तमाम बुजुर्गों के मार्गदर्शन की। मेरे पिता आप जीवित नहीं हैं, अपना मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे जितने बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब मेरे पिता तुल्य हैं। आप सब मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बिहार, जय। जो IAS टॉप करते हैं वो कौन से बिहारी होते हैं, और जो JNU पे कब्जा किए हुए हैं वो कौन से बिहारी हैं? So anyway, बहुत खुशी हो रही है आपकी इतनी पॉजिटिव और जी हाँ पेपर लीक कर वहाँ से टॉप करते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब भी मैं बिहार से के रहने वाले किसी भी इंसान से मिलती हूँ तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ज्ञान में और भाषा में वृद्धि ज़रूर होती है। और अभी ये मैं भूल गई थी सच में, स्पॉन्सर जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस इवेंट का, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम जो है इतना प्यारा और इतना सफल हो सका। यूनिप्लस, इन्वेंटा एंड प्रभात ट्रेवल्स, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से रवि जी, हाँ जी, कुछ यहाँ पे हमारे दुबई में जो बिहार से के जो लोग हैं जो दिल लगा के भोजपुरी समाज, मिस्टर विकास कुमार सिंह, मिस्टर विकास कुमार सिंह, मिस्टर जितेंद्र बत्रानी, बिहार समाज अबू धाबी,
Mr. Deepak Kumar. Mr. Deepak Kumar. Mr. Jayaprakash. Mr. Abhishek Kumar Sharma. Mr. Abhishek Kumar Sharma. Mr. Manoj Kumar Singh. Mr. Manoj Kumar Singh. मैंने टीम में 2 मनोज जी हैं, एक छोटा और नाम संजीव कुमार, Rupesh Arora ji is a young entrepreneur in Dubai. He is not from Bihar, but he has done a great work in the social field. So we also have a media personality here, Ms. Kusum Rawat. She has worked in Times of India, and for the last 5 years she has started her own company, and she does the profiling of the businesses and has done a lot of work during the COVID time. So I would like to invite her. Then we have also a representative from, despite fasting and despite a lot of community work, he has found time today to come. So Mr. Akhtar is in.
अंसारी महान पंचायत की पिछड़े वर्गों की बात करता है और उनके लिए काम करता है। अब एक क्विज है, तो देखता हूँ आप में से कितने लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं, और जो लोग उसमें जीतेंगे वो थोड़ा सा बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए, इसमें यू कैन रेज योर हैंड, so Dr. Ambedkar was born in A. Maharashtra, B. Madhya Pradesh, C. Karnataka, D. Gujarat. मध्य प्रदेश। हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप बस वेट कीजिएगा, विनर हैं। When was Dr. Ambedkar born? 14th April 1891, 1893, 91 बोला था। 91 yes। When was Dr. Ambedkar given Bharat Ratna? 95 नहीं, 1990. So you are the, what's your name? Okay, wow, good. इसमें एक सेकंड में इसमें जुड़ना चाहूँ, ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि मेरी रगों में एक ऐसा नेता का खून है। हम सब ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की हम लोगों ने बातें की, सब किया, पर एक ऐसा समय था, एक ऐसा दौर था जो कि शायद आज हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि बाबा साहेब जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान के निर्माता रचयिता थे, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में, भारत की संसद जिस संविधान के आधार पर वो संसद चलती है, ये देश चलता है। सोचिए, अब इसको पता नहीं डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे या उस वक्त की सरकारों की लापरवाही बोलेंगे, जबकि एक ही परिवार के 3-3, 4-4 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में थी। 89 से पहले एक भी तस्वीर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की भारत के संसद में नहीं थी। पहली बार उनकी तस्वीर को लगाने का काम वीपी सिंह जी की सरकार में, उस वक्त मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय उनका पहला तैलचित्र, पापा बोलूंगा मैं क्योंकि घर से बोलूंगा, पापा ने उनका पहला तैलचित्र उन्होंने वहां पे लगाने का काम किया, और उसी वक्त उनको भारत रत्न देने का भी घोषणा। धन्यवाद चिराग, एक्चुअली ये शेयर करने के लिए हमारे लिए भी एक मोमेंट है। ये बात सुनकर मुझे भी नहीं जानकारी थी, लेकिन ये जो फैक्ट आपने बताया, और इसके लिए जाहिर सी बात है हमारे स्वर्गीय जो नेता हैं रामविलास पासवान जी को धन्यवाद ही कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी constituted to form the Indian Constitution? क्या नाम है? राकेश। इसमें टाई था, कोई और बोला था साथ में, आपको तो पहले ही बोल चुके हैं। Which of the following book has not been written by Dr. Ambedkar? The first, Thought on Pakistan, Annihilation of Caste, The Problems of Rupees, Origin and Solution, Gandhi, Nehru and Tagore. सबका ख्याल रखा जाए। Which of the following Indians participated in all 3 round-table conferences? Dr. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Jawaharlal In which city PM Narendra Modi laid the foundation stone of Dr. B.R. Ambedkar International Center? Delhi.
Yes, New Delhi. Yes, go for it. Where did Dr. Ambedkar went for doing study of barrister? London. Columbia, London. Okay, yes, London. From where did Dr. Ambedkar begin his practice as a lawyer? Columbia. The options are Delhi High Court, Madras High Court, Mumbai High Court, Allahabad. फिर मौका मिलेगा। इस बीच में भूल गया एक्चुअली हमारे बहुत सीनियर श्री राधे जी यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे लगा कि वो चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। Photo, please. We'll do it later. Okay, please. We have some more program. Can you please, Akhtar Saab? सब इकट्ठे ही जितना मुझे याद है आखिर से ही शुरुआत करते हैं। इन्होंने शिक्षा की बात की, सिर्फ उन्हें एक ही बात दोहराऊंगा, इच्छा शक्ति। जो मैंने कहा वेदर विल वाली बात, अगर इच्छा शक्ति है तो कोई भी कार्य मुझे नहीं लगता असंभव है। पर आज की तारीख में शिक्षा को लेकर वो इच्छा शक्ति ही नहीं है, एंड मोर देन इच्छा शक्ति का नहीं होना, शिक्षा बेहतर ना हो उसको लेकर प्रयास हमारे राज्यों में किया जाता है। बिकॉज कई राजनीतिक दल को सूट करता है ये कि भाई बिहारी पढ़ लिख नहीं जाता, क्योंकि बिहारी पढ़ लिख जाएगा तो सवाल करेगा, उनसे अपने हक अधिकार की बात करेगा। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की ओर हम लोग को बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हम लोगों की सीनियर हायर एजुकेशन भी उतनी ही सशक्त हो, उतनी ही मजबूत हो। उसके लिए विश्वसनीयता के साथ वो क्रेडिबिलिटी एजुकेशन को बिहार में मिले, उस दिशा में हम लोग काम करने की हम लोग को ज़रूरत है। पूरा रोड मैप आप चाहेंगे मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसे पंचायतों से मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, कैसे महाविश्वविद्यालय के तौर पर पटना में हम लोग उसको स्थापित कर पाए, उस स्तर तक उसको लेकर जाने की सोच है। तो ये प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। शादी का कुछ लेना देना नहीं है इससे, तो उस पर कोई टिप्पणी करने का मतलब। पर हाँ, तमाम और साथियों ने एक और विषय था भागलपुर में एयरपोर्ट वाला, भागलपुर के एयरपोर्ट पे आपने भाई उठाया था इस विषय को। इसकी भी पहल हम ही लोग कर चुके हैं। भाई मैं ईमानदारी से बोलूँगा, बहुत ना नेता वाली बातें लगती हैं जब आप बोलेंगे हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं वो झूठे आश्वासनों में मैं नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए मैं मन से ये भी नहीं कि अरे हम करके ही जाएंगे, हम करके ही दिखाएंगे। मुझे भी मेरी सीमाएं पता है, पर मैं इतना बोलता हूँ, जिस दिन मेरी सीमाएं बढ़ जाएंगी
और मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, बिना किसी विलंब के एक क्षण में ये तमाम बातों को किया जाएगा। पर तब तक निराश होकर प्रयास भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। भागलपुर में भी वहाँ पे हमारी पार्टी की ही है संगीता तिवारी, और एक भी प्रॉमिस टूटने भी नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, यू ऑल बी ठीक है, ले लीजिए पिक्चर, आपको दे दीजिएगा जी। हमारे हाजीपुर से सीएम बनेंगे ना, और एक भी प्रॉमिस टूटने भी नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, यू ऑल बी ठीक है, ले लीजिए पिक्चर, आपको दे दीजिएगा जी। हमारे हाजीपुर से सीएम बनेंगे ना,